हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। Only Israel can enter. केवल इजरायली पहुंच सकता। All Israel cannot enter. सारा इजराइल भी नहीं पहुंच सकता। Only ritually clean Israelites may enter. केवल वही जो व्यवस्था के आधार पर शुद्ध किया गया हो, All cannot enter. सब अंदर नहीं आ सकते। Only VIPs can enter. केवल वीआईपी ही घुस सकता है। That too, anybody is not a VIP. हर व्यक्ति वीआईपी नहीं है। If you are on duty and if you are a VIP card holder, you may enter. और यदि आप ड्यूटी पे हो और आपके पास में वीआईपी कार्ड हो तो ही आप आ सकते हो। Who is there? Who can enter there? लेकिन वहां कौन जा सकता है? Only the one VVVIP can enter. केवल एक ही वीआईपी वहां जा सकता है। How often can he enter? कितनी बार वो जा सकता है? Once a year he may enter. वर्ष में केवल एक बार। Look at the wealth of the grace of God given to us in the Messiah. देखिए यीशु मसीह में परमेश्वर के उस अनुग्रह की उदारता को आप जरा सोचिए। We all, हम सब male and female, पुरुष और स्त्री, no consideration of ritual cleanliness or anything कोई like that. शुद्धिकरण अशुद्धिकरण की बात वहां नहीं। Every day of your life, आपके जीवन के हर दिन, day and night, दिन और रात, wherever you are, जहां भी आप हो, as a man or a woman, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, as a slave or a free man, चाहे आप गुलामी में हो चाहे आप आजाद हो, as a Jew or a Gentile, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी हो, it doesn't matter. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You may be educated, you may not may not know how to read and write. आप शायद बहुत पढ़े लिखे होंगे या आपको लिखना पढ़ना नहीं आता होगा। There was a member in my church when I got converted in 1972. 1972 में जब मैंने प्रभु को पाया, हमारी कलीसिया में एक सदस्य थे। He did not know how to read and write. उनको पढ़ना लिखना नहीं आता But था। every Sunday he will testify. लेकिन हर रविवार वे गवाही देते। He will open the Bible. वे बाइबल खोलते And usually it is upside down. और उल्टा वे पकड़ते थे And he will be reading. और वो उसको उल्टा पकड़ के पढ़ते थे। He has by-hearted so much, you know. आपको मालूम है कितने वचन उन्होंने याद कर लिए थे? And when he reads from Isaiah, it will be somewhere near Isaiah, don't worry. और आइजिया से पढ़ेंगे, आस पड़ोस में कहीं कोई किताब का पन्ना खुला होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं। How much of the Bible he knew? कितना बाइबल वो जानता था। All he needed was to hold a Bible in his hand when the verse will come. केवल बाइबल हाथ में पकड़ लेता, आयत अपने आप मुंह में आ जाती। I went to Gujarat. मैं गुजरात गया And I met a lady, a pastor. वहां पर एक बहन पासबान से मैं मिला। She doesn't know how to read and write. उनको भी लिखना पढ़ना नहीं आता। But this is a testimony. लेकिन गवाही, The Holy Spirit reads to her the scriptures. कि मानो पवित्र आत्मा उस बहन के लिए वचन पढ़कर उसे सुनाता रहता। And then she asked people, read Ezekiel 37 and verses 1 to 5. और उसके बाद में वो बहन बोलती कि एजेकियल 37 उसका 1 से 5 पढ़ो। And she will repeat the verses. और वो उन आयतों को दोहराएगी। The पढ़े लिखे people will verify it and say yes, 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 yes. और जो पढ़े लिखे लोग बाइबल टटोलेंगे, हाँ यार बिल्कुल सही बोल रही है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हो? She told me that. उस बहन ने मुझसे And कहा। her church members said amen to that. और कलीसिया के लोगों ने आमीन बोला उस बात। God doesn't bother whether you can read and write. परमेश्वर परवाह नहीं कर रहा आपको पढ़ना आता है या नहीं आता। We all, हम सब everywhere, कहीं भी at हो, all times, हर समय through the cross, क्रूस के द्वारा, in the Spirit of God, मसीह की आत्मा के in द्वारा, the body of Christ, यीशु मसीह की देह में we can enter into the house of God. हम परमेश्वर के घर में प्रवेश कर We सकते are हैं। enter into the holy place. हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश करते And हैं you enter into the holy of और holies. आप उस अति पवित्र स्थान में भी प्रवेश कर सकते हैं। Let me tell you the secret about that. और उसका भेद मैं आपको बताऊं। You know, Pastor Paul Matthew read from Isaiah 6 this morning. Was it not? About oh, it was Revelation. Okay, let me take you to Isaiah 6. और यशायाह 6 का एक पद यहाँ मानो पढ़ा You know, we गया। read about the seraphim there. और वहां पे करूबों के बारे में, हम सराब के बारे में देखते They हैं। have 6 wings. 6 पंख उनके हैं, With 2 they fly. 2 से वे उड़ते हैं। Just like you need legs to stand, they have wings to fly. और जैसे हमें पैर की जरूरत होती है खड़े रहने के लिए, वैसे सराब के पंख होते हैं उड़ते हुए रहने के लिए। With 2, 2 से they not only cover their body, उनके शरीर को ही नहीं ढांप you know, रहे, they cover their body. उनके शरीर को भी ढांप 2, रहे they हैं। cover their faces. 2 से अपने मुख को भी ढांप रहे हैं। They are in the presence of God. वे परमेश्वर की उपस्थिति में They हैं। are close to God. वे परमेश्वर के करीब हैं। They can, you know, if they remove their wings, they can see God. और वे पंख हटा देंगे, प्रभु को देख सकते हैं। But they cannot remove the wings that cover their faces. लेकिन वे अपने चेहरे को
जिन पंखों ने ढांप रखा है उन पंखों को नहीं हटा सकते। Their eternal designation is to worship God with covered faces. और उनका जो कार्य है, जिम्मेदारी है, प्रभु की आराधना करना है, लेकिन चेहरे पंख से ढपे हुए होने चाहिए। You who come from a village, लेकिन आप जो एक गांव से आते हैं, you who did not do very well in your SSLC examination, और जो आप उस दंड से बाहर निकाले गए हैं, जो कोई परीक्षा नहीं लिखी, you who do not have a healthy body, आप जिनके पास में शायद एक अच्छा शरीर नहीं होगा, you and I, आप और मैं, we together हम मिलकर enter into God's presence परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश करते in हैं, the Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा में। And you know what the Holy Spirit does to you? क्या आपको मालूम है पवित्र As you आत्मा enter आपसे into क्या the कहता into the है? presence of जब God, आप प्रभु की उपस्थिति the में आते Holy हैं, Spirit becomes a protocol officer. पवित्र आत्मा मानो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर बन जाता When है। the ambassador of Italy comes to present his credentials, जब मानो इटली का राजदूत यहाँ पर आता है अपने बारे में बताने के लिए, Pranab Mukherjee doesn't know who is ambassador of Italy or England. He doesn't know that. प्रणब मुखर्जी को नहीं मालूम होगा कि इटली का एम्बेसडर कौन है, And there's a protocol officer. लेकिन एक प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है, He will announce वह सूचना देगा the ambassador of Italy, कि इटली का एम्बेसडर, High Commissioner of Britain, ब्रिटेन का हाई कमिश्नर, and then the High Commissioner comes. जब वो बोलेगा वो हाई When you कमिश्नर want आएगा। to pray to God, लेकिन जब आपको प्रभु से प्रार्थना करनी when है, you want to enter into the presence of God, जब प्रभु की उपस्थिति में आप आते हो, God the Holy Spirit announces, पवित्र आत्मा मानो घोषणा करता है, your child, आप बेटे, your daughter, आपकी बेटी, your servant, कि आपका दास, your trusted servant, प्रभु कहकर वो पवित्र आत्मा your कहता है कि तू धन्य दास martyr, है, your martyr, तू प्रभु के लिए शहीद किया गया, your youth worker, वह एक जवान कार्यकर्ता है, your angel तू एक स्वर्गदूत है, from Rajasthan is coming. और वह मानो स्वर्ग में इस बात की घोषणा करता है, स्वर्गदूतों को बोलता है, वहां की सारी मंडली को, सारी जमायत को प्रस्तुत करता है कि राजस्थान से आया है। We enter into the presence of God with unveiled faces and with boldness and with authority, because Jesus and the Spirit have facilitated मैं that. और आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, बिना अपना चेहरा ढके हुए, उघाड़े हुए अवस्था में, बिना पर्दा किए हुए हम परमेश्वर के पास में आते हैं, उसकी महिमा में हम प्रभु के आनंद को हम महसूस कर पाते हैं। This is called the royal priesthood of all the believers. और यह है हर एक मसीही का राज पदधारी We याजकीय पद। are a holy nation, a chosen people, and a royal priesthood. हम एक पवित्र प्रजा है, चुना हुआ वंश है और राज पदधारी याजकों का समूह है। We are the real priests of the living God. हम उस जीवित परमेश्वर के याजक हैं। Sisters, you are the real priests of the living God. बहनों, उस जीवित परमेश्वर के याजक आप भी हो, And we can enter into the presence of the living God और हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश पा सकते हैं, because we are reconciled to Him and to one another. क्योंकि उसके साथ में ही हमारा मेल मिलाप नहीं हुआ है, आपस में भी हमारा मेल मिलाप हो चुका That is है। why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, you are going to the temple. Are you? क्या आप उस देवालय में जाओगे? You have got a sacrifice to give to God. क्या आपके पास में देने के लिए कुछ बलि है? And you are pulling the animal क्या आप उस पशु पर को जिसे बलि चढ़ाना उसे खींच कर लेकर आ रहे हो? on your scooter. There is so much of wheat, with the scooter cannot pull also. और स्कूटर में इतना गेहूं है, इतना बोझ भरा हुआ है कि स्कूटर भी हिल नहीं रहा, इतना सामान लेकर आप आ रहे हो। You are going to Udaipur church to give first fruits. आप उदयपुर कलीसिया में आ रहे हैं, आपकी जो फसल हुई उसका पहला भाग लेकर आप आ रहे हो। You don't have first fruits here? Harvest festival? Your scooter cannot drive it even, carry और it. आपकी फसल बहुत हुई, उस फसल का एक भाग लेकर कलीसिया में देने के लिए आ रहे हैं, बोझ इतना है, फसल इतनी सारी है कि स्कूटर आगे नहीं चल रहा। And you and the scooter are together pulling it. आप और स्कूटर दोनों मिलकर खींच तान करके लेके आ रहे हैं। Then you remember. तब आप याद करते हो, मार्टिन, Yesterday night you shouted at your wife. गत रात्रि को तूने तेरी पत्नी को ऊपर तू चिल्लाया, लड़ाई करके, And you even told her, you get out of my house. और तूने पत्नी को बोला भी कि घर छोड़ के निकल जा। You remember. आप सोचिए, That is why your wife is not coming to church today. और इसलिए आज आप अकेले हो, आपकी पत्नी चर्च में नहीं आई। What does Jesus say?
यीशु ने क्या बोला? If you want access into the presence, यदि परमेश्वर की उपस्थिति में, ध्यान दीजिए, यदि परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी पहुंच होना है you तो leave your offering there, go and get reconciled to your brother, because unless you are reconciled, you are denied access. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि आप आराधना के लिए आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में याद आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हैं। यीशु ने कहा उस वेदी को, उस बलि को छोड़ दो, बाकी बातों को छोड़ दो, पहले जाओ घर में मेल मिलाप करो, इसके बाद में आकर आराधना करो। Brothers and sisters, प्रिय भाई, प्रिय बहन, this is the golden jubilee celebration. यह हमारा स्वर्ण जयंती समारोह है। What is the jubilee? जुबली क्या है? It is an year of reconciliation. यह है मेल मिलाप का वर्ष। It is a time of repentance and re-beginning. यह मानो मन फिराने का, नई शुरुआतों का एक वर्ष है। It is a time to cancel every debt. यह पुराने कर्जों को निरस्त करने का एक वर्ष It is है। a time of forgiveness and release. और यह क्षमा करने का, आपस में एक दूसरे को मुक्त करने का एक वर्ष है। We are celebrating Christ among us, the hope of glory. हम मसीह जो महिमा की आशा हमारे मध्य में है, उसका उत्सव मना रहे हैं। That reconciliation and celebration will be a reality if we give reconciliation and forgiveness to one another. और वह मेल मिलाप, वह आनंद मनाना एक वास्तविकता तब ही हो सकती है जब हम आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए हम तैयार हो जाएं। Start it from your homes. अपने घर से आरंभ कीजिए। Is there reconciliation in your home? क्या आज आपके घर में मेल मिलाप है? If not, let us celebrate the 50th year of the gospel here by forgiving one another. यदि ऐसा नहीं तो सुसमाचार यहाँ पर आए हुए 50 वर्ष के उत्सव की शुरुआत हमारे घर में हम आरंभ करें। What is the quality of your relationship with your brothers and sisters? आपके भाई बहनों के साथ में आपके संबंध की गुणवत्ता क्या है? Is it conflicting क्या ये विवाद को उत्पन्न कर रही है, or is it reconciled? या मेल मिलाप वहां पर है? We worship together, हम साथ में आराधना we करते pray हैं, together, हम साथ में प्रार्थना but करते in हैं, our hearts we don't like each other. लेकिन हमारे दिल में कहीं हम आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर Let रहे। us celebrate Jubilee today. आज जुबली जब हम मिलकर मना रहे The हैं, Christ among us wants us to be reconciled to one another. मसीह जो हमारे मध्य में है, उसकी दिल की चाहत एक ही है, आपस में मेल मिलाप। Brothers and sisters, forgive from the heart one another. प्रिय भाई, प्रिय बहन, दिल की गहराई से एक दूसरे को क्षमा करो। You have been serving the Lord together for many years. कई सालों से आप मिलकर सेवकाई कर रहे होंगे, But is there hostility between you? लेकिन क्या आपके मध्य में मन मुटाव है, विवाद है? Let this Jubilee be a time of reconciliation. और यह जुबली एक मेल मिलाप का समय हो जाने पर Tonight, deny your eyes the sleep that you want. आज रात आंखों से नींद को भगा दो, You go to God. प्रभु के पास में जाओ, Search your heart. अपने हृदय को टटोलो। Is somebody alienated from you? क्या कोई मुझसे दूरी बनाए हुए है या नहीं? आप जरा सोचिए। Ask the Spirit His grace and strength to be reconciled to Him. प्रभु से कहिए, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर वो भावना दे दे, वो सामर्थ्य मुझे दे दे कि मैं जाऊं और मैं अपने भाई से, बहन से मैं मेल मिलाप करूं। God is a God of reconciliation. परमेश्वर मेल मिलाप करवाने वाला He परमेश्वर, is a peacemaker. वह शांति को स्थापित करने वाला। Jesus is our peace. यीशु मसीह ही हमारा मेल है, And He wants to bring about a revolution of reconciliation in our deepest associations. और वो हमारे उन गहरे और निकटवर्ती संबंधों के मध्य में मानो मेल मिलाप के द्वारा एक नई क्रांति की शुरुआत करवाना चाहता And है। then He wants to commission us as ambassadors of peace. और उसके बाद में मेल मिलाप के राजदूत के समान मुझे और आपको वो नियुक्त करना We चाहता look है। at it in the last day. अंतिम दिन हम उस बारे में देखेंगे, But tonight, लेकिन आज रात do you really believe क्या आप वास्तविकता से God विश्वास has करते हैं? reconciled the world to Himself? परमेश्वर ने मानो जगत का मेल मिलाप अपने से कर दिया, He has cancelled enmity. उसने उस शत्रुता को निरस्त कर दिया And He has made us one in the body of Christ. और मसीह की देह में मानो हमें एक कर दिया गया We है। are appointed as a royal priests who have access into God's very holy of holies. और हमें उन राजपदधारी याजकों के समान नियुक्त कर दिया गया है कि हमेशा उस अति पवित्र स्थान में हमारी पहुंच हो सके। Receive this gift.
आज इस वरदान को स्वीकार कर लीजिए, Accept this gift. इसको ग्रहण कर लीजिए। We accept it when we accept one another as equals in Christ. और जब हम आपस में एक दूसरे को मसीह में समान मानते हैं, एक तुल्य दर्जा देना चाहते हैं, तब इस बात को हम Our ग्रहण कर सकते हैं। language may be different, our culture will be different, but we are one body in Jesus Christ. हमारी भाषा अलग अलग हो सकती है, हमारी संस्कृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह की देह में मैं और आप एक है। Jesus came and destroyed the whole wall of hostility. और यीशु मसीह ने वो अलग करने वाली दीवार को गिरा दिया। Deep in your heart, आपके दिल की गहराई में, deep in your mind, आपके मन के अंदर you have walled somebody out. आपने किसी को मानो दूर कर दिया। Tonight I proclaim in the name of Jesus, आज रात यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, every wall of enmity, let it be cancelled in the name of Jesus. शत्रुता की दीवार यीशु के नाम में निरस्त की जाने पाए। Do you want to be a friend of God? क्या आप परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हैं? What Jesus has destroyed, you do not rebuild. जो यीशु ने गिरा दिया है, उस दीवार को वापस खड़ा मत करना। God wants reconciliation in our families, परमेश्वर हमारे परिवारों में मेल मिलाप चाहता है, among brothers and sisters, भाइयों में बहनों के बीच में मेल among मिलाप, husbands and wives, पति पत्नी के मध्य में मेल मिलाप, among older people and younger people. बड़े लोगों में जवानों के मध्य में मेल We मिलाप। are not enemies. हम शत्रु नहीं हैं, We are members of the same body. हम उस एक देह के भाग हैं। Jesus has come and proclaimed peace into the depth of our hearts through the gospel. और यीशु मसीह ने हमारे दिल के अंदर मानो उस मेल मिलाप के बीज को बो दिया है। Allow this peace scripted by Jesus to shape our relationships. और यीशु मसीह ने जो मेल मिलाप हमारे अंदर डाल दिया है, अनुमति दीजिए कि वह मेल मिलाप आपके जीवन को एक नया आकार, एक नई दिशा प्रदान करने Is there पाए। somebody you cannot work along with today? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ में आप काम करने में अस्वस्थ महसूस करते हैं? Release him in the name of Jesus. यीशु के नाम में उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए, Forgive in the name of Jesus. यीशु के नाम में उसे माफ कीजिए। Cancel debts in the name of Jesus. कर्जे को, उस बात को यीशु के नाम में आप निरस्त कर दीजिए, That is jubilee. क्योंकि ये जुबली है That is celebration. और ये उत्सव है That is rejoicing. और वो आनंद है। That is being reconciled to और God. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का अर्थ यही है, That is participating in the gospel of Jesus. और यीशु मसीह के सुसमाचार की सहभागिता यही है। Don't say no to God. प्रभु के लिए मना मत करिए, Don't say no to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को इनकार मत कीजिए। You will be rebelling against God then. यदि ऐसा करोगे तो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करोगे। Today you are a friend of God. आज परमेश्वर के मित्र हो आप, You are not his enemy. आप उसके शत्रु नहीं हो, You are a member in the family of God. और उसके संगी वारिस, उस परिवार के सदस्य हो You आप। are not an outsider. आप विदेशी नहीं, बाहरी You are नहीं, an insider. लेकिन आप उसके संगी We हो belong to God. और हम परमेश्वर के साथी। Let us celebrate the unity of Jesus in the body of Jesus. और मसीह की एकता, मसीह की देह में हम आइए मिलकर उस उत्सव को मनाएं। May the Holy Spirit give you boldness to obey the gospel. पवित्र आत्मा आपको निडरता देने पाए कि उस सुसमाचार की आज्ञा का पालन आप कर सकें। Amen. Thank you. आमीन। एक और बार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के लिए। इस वचन की ओर देखें एक और बार कि परमेश्वर ने उस मसीह के जरिए, मसीह जो भेद था उसको हम पर प्रकट किया और उसके जरिए हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया और आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप कराया। वो भेदभाव की दीवार आपस में, परिवारों में जाति की भेदभाव की दीवार को तोड़कर, समाज में भेदभाव की दीवार को तोड़कर हमारा मेल मिलाप आपस में कराया। यही संदेश सुसमाचार का है और यही परमेश्वर की महिमा की आशा है। यह संदेश हमारे बीच में लेके आए, इसलिए मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम जल्दी भेंट लेंगे अभी और मैं आराधना की अगुवाई करने वाली टीम को मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। आई लाइक टू कॉल अपॉन द वर्शिप टीम एंड विल टेक द ऑफरिंग। भेंट लेने का समय है।